Assalamu alaikum. Namaste. How are you? I hope all of you are fine. I am Chandra Kumar. I am going to discuss. I am going to deliver lecture about tense. As we have already finished that present tense, past tense, and future tense, in which we have learned simple present and in which it is considered as a state of action, in which we have been given a sentence in which action was being given to us. So we have another thing is that we have finished to be tenses, present to be, past to be, and future to be. So today we are going to discuss this is a state of very important tenses. This is present tense, but if we know that present possessive tense, which is very important, we need to understand the present. How many tense? First of all, we have covered present action tense, 3 tenses. Present to be tense, 3 tenses. Today we are going to discuss about present possessive tense, in which it means that मालिकी वाली जिसमें कोई किसी चीज़ का वही मालिक है, किसी चीज़ की बस उसकी प्रॉपर्टी के ओनरशिप शो कर रहा है, ये क्या present possessive tense है. So we have given just has and have auxiliary verb, as we have already discussed that first of all we need to understand the structure of the tense, and then we need to translate it in English grammar. So let's start. Just before going to discuss, we should know that what is present possessive tense. Present possessive tense, it's a tense which shows the existence, it's a tense which shows the ownership of any property, which shows ownership of anything. For example, if I have any property, what I say that I am master of this property. आप किसी भी प्रॉपर्टी की मालिकान हो, वो क्या है? प्रेजेंट पॉजिटिव टेंस है. पॉजिटिव मीन्स मालिक. वो चीज़ आपके हाथ में, वो चीज़ आपकी है, वो चीज़ आपसे बिलोंग करती है. हम इसी वाले सेम सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट उर्दू वाले सेंटेंस को इंग्लिश में कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं लेक्चर सिंपल और इसी तरीके से आस्ते आस्ते हम आगे बढ़ेंगे, जैसे कि इसको हम डिस्कस भी करेंगे उसके साथ साथ एग्जाम्पल के साथ साथ, और काफ़ी मतलब हम टर्मिनोलॉजी पे फोकस करेंगे, जैसे कि हम कैसे एक सिंपल ट्रिक है टेक्निक के साथ साथ उसको अंडरस्टैंड करें. सो लेट्स स्टार्ट. First of all, before going to present possessive tense, we need to understand the structure. What is the structure of present possessive tense? Previously we have been given just like to be tense is MR, in present to be tense was verb, past to be tense, in future shall be or will be to be tense. But we are going to discuss about present possessive tense, in which we have how many auxiliary verbs? We have 2 auxiliary verbs, have and has. We need to understand have and has and its usage, how we use it in this sense and this sentence. So before subject first plus have or has plus object plus extension of sentence. This and this you already know it. Object means something that affects, something that shows the impact. कोई चीज़ इफेक्ट और असर शो करती है, वो क्या ऑब्जेक्ट है. हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. हम जानेंगे हैव और हैज, ये एक नया वर्ड्स है. दिस इज न्यू वर्ड्स, दिस इज न्यू ऑक्सिलरी वर्ब व्हिच is very important to know the real cause and real usage of this words. Have is used for plural sense. If the subject is plural, we need to use the have. For example, I, we, you, or they, any plural name, we use have with the sentence, in the sentence. But if we have subject singular, then we use has. For example, he, she, it, or any single name, Sir Jawar, Sir Hadi Baksha, Chandra, any किसी भी पर्सन का सिंगल नेम है, हो गया हम वो क्या वहाँ क्या यूज़ करेंगे, और इट भी सिंगुलर है तो उससे हम हैज इस्तेमाल करेंगे. अगर हमारे यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्प या तो हैव इस्तेमाल करेंगे. ये स्ट्रक्चर है. हम इसके जो पॉजिटिव टेंस है, जो प्रेजेंट पॉजिटिव टेंस है, जो ये ओनरशिप प्रेजेंट की भी शो कर रहा है. इसके पास है कब, अभी है. इसके पास घर है, मेरे पास घर है, मेरे पास पैसे है. इमरान खान के पास क्या है, पैसे हैं, कब, अभी है. इमरान खान हैज़ मनी, इसके पास क्या है, पैसे हैं, कब, अभी ओनरशिप शो कर रहे हैं, तो हम उसको प्रेजेंट पॉजिटिव टेंस कंसिडर किया जाता है. इसको इससे मतलब दूसरे स्टेट ऑफ पॉजिटिव भी कहते हैं, या पॉजिटिव टेंस भी आप कह सकते हैं. और
कोई फ़र्क नहीं है। इफ़ वी कॉल इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव टेंस और इफ़ वी कॉल प्रेजेंट पॉजिटिव टेंस, देयर इज नो डिफरेंस, क्योंकि ये प्रेजेंट की ऑनरशिप शो करता है। तो हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू जस्ट वी हैव क्लियर द सेंटेंस इन विच जस्ट हैव, हैं, सपोज इसके पास हैं, क्या हैं, अभी हैं, इसके पास है, इसके पास हैं, ये क्या है, ये मतलब इसके पास हैं, पास कुछ तो कुछ होता है, लेकिन वो क्या है प्रेजेंट पॉजिटिव टेंस में, वो क्या है प्रेजेंट पॉजिटिव टेंस में। जैसे कि मेरे पास एक कार है, क्या है, मेरे पास एक कार है। चंदर के पास पैसे हैं, ये क्या है पॉजिटिव प्रेजेंट पॉजिटिव टेंस। कभी अभी ये पैसे के मालिक है, अभी इसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। इमरान खान है और शेख रशीद है, उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। कब, अभी के बारे में बात की जाए तो हम इसको, ये अभी मालिक हैं, ये अभी मालिकान हैं इसी गाड़ियाँ के, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, वो क्या है प्रेजेंट पॉजिटिव टेंस। सो हम जानेंगे मेरे पास, पहला ये सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। मेरे पास एक कार है। We have this sentence. How we translate it? This sentence in English grammar. We need to focus on first subject. Subject, as you know, that subject is will be in start from the sentence. हर सेंटेंस के स्टार्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। जैसे कि मेरे, ये क्या है, सब्जेक्ट है। मेरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई। आपको आई पुट करना है। Then you go to the structure. This structure of tense. What? This is a structure. What we call structure. ये एक स्ट्रक्चर है जो हमें बताती है, हम उर्दू वाले जो सेंटेंस हैं, किसी भी लैंग्वेज में जो सेंटेंस है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए ये हमें रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। दिस इज रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ दिस टेंस। हर टेंस की अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं। तो इस टेंस में जाने के लिए ये क्या है, हमें जानना है हैव और हैज। हैव इज यूज फॉर आई, वी, यू, दे आर प्लूरल और इट इज प्लूरल नेम। प्लूरल हमने पहले लिख लिया है कि कोई प्लूरल नेम होगा तो उससे हम क्या यूज़ करेंगे, हैव इस्तेमाल। तो यहाँ से क्या है, पहले आई लगा दिया, ठीक है, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या, ऑक्सिलरी वर्ब की हमें ज़रूरत है। जैसे कि हमने पहले बताया सब्जेक्ट प्लस हैव एज किया, या ऑक्सिलरी वर्ब है, हमने ऑक्सिलरी वर्ब पुट कर लिया। फिर क्या, ये क्या ऑब्जेक्ट है, व्हाट वी कॉल दिस इज ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट है। डिड यू गेट इट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है मेरे पास आई है, मेरे पास आ गया। क्या है, एक कार है, अ कार। अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा गाड़ियां हैं तो हम क्या कहेंगे, आई हैव कार्स। अगर मेरे पास एक कार तो मैं कहूँगा आई हैव अ कार, और रेफर करती है एक कार। क्या क्या करती है, इट शोज वन कार, ये सिर्फ एक ही कार को रेफर करती है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, अ कार। अगर ये क्या पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएगा, इसको हम बयानी सेंटेंस भी कहते हैं। सपोज इसी को इंटरोगेटिव कैसे बना सकते हैं, तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए सिंपल और सादी ट्रिक में हम ऐसे बनाएं कि जो ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस में दिया गया है उसको, ऑक्सिलरी वर्ब को सेंटेंस से निकाल कर सब्जेक्ट के स्टार्ट में लगा दो, सेंटेंस बन जाएगा इंटरोगेटिव। जैसे कि ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, इसको हमने यहाँ से उठाकर यहाँ से लगा दिया है, बाकी पूरा सेंटेंस सेम ही छोड़ दिया। आई हैव आई कार। क्या मेरे पास गाड़ी है, ये क्वेश्चन है। क्या तुम्हारे पास गाड़ी है, ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें क्वेश्चन पूछी जाती। हैव यू अ कार, क्या इसके पास गाड़ी है, ये भी क्या है, इंटरोगेटिव है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या ये पॉजिटिव शो करा, इसमें कोई एक्शन, कोई टू बीज नहीं है। हम बात करें टू बीज कोई नहीं, देखें है नहीं, इसके पास है, उसके पास है, हमारे पास है, पास है, क्या है, कुछ न कुछ होगा, पैसा होगा, गाड़ी होगी, कुछ न कुछ होगा ज़रूर। वो क्या है, मालिक, मीन्स मालिकान है, उसी प्रॉपर्टी का वही हेड है, वो इसी प्रॉपर्टी का वही ओनर है। तो ये बन जाएगा इंटरोगेटिव। अगर इंटरोगेटिव को नेगेटिव कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए आपको सेम ही सेंटेंस को ऐसा छोड़ दें, बस सब्जेक्ट के पास क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है। हैव आई नॉट अ कार, ये अब मैं पहले बता चुका हूँ। अगर हमारे पास एक ही कार नहीं है तो हम क्या, मेरे पास एक ही कार नहीं है तो क्या हम लगाएंगे, ज़्यादा हैं, एक ही कार, हमारे पास कार ही नहीं है तो हम कार से, यहाँ से आप कार से लगा सकते हैं, अगर इसको रिमूव कर दीजिएगा। सो हम आगे बढ़ेंगे। सनम के पास बकरियाँ और भेड़ है। भेड़, सनम के पास, सनम एक नेम ऑफ गर्ल है, उसके पास
ये वुमेन है, इसके पास ये बकरियां और ये भेड़ियां हैं। तो हमें इसी सेंटेंस को ये देख लेना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, ये है सनम। सनम सिंगुलर या प्लूरल? सनम सिंगुलर है। ये नहीं देखना कि यहाँ है किस लिए है, इसलिए ये क्योंकि ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हम इसलिए है लगाया है। इसका कोई एक्शन नहीं, पर इसका कोई मतलब नहीं। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू पे अटेंशन ऑन द सब्जेक्ट। यू राइट द सब्जेक्ट है सनम। इफ सनम इज सिंगुलर देयर इज नो एनी अदर सब्जेक्ट, कोई इसके पास और दूसरा सब्जेक्ट नहीं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इसको रूल्स देखेंगे। अगर हमारा हैज़ किससे यूज़ होता है, ही शी इट आर सिंगल नेम, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। ही शी इट किससे इस्तेमाल होता है, सिंगल नेम जो भी होते हैं उससे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हैज़। तो हमें क्या ये ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ को लगाना पड़ता है। कितने गोट्स पता नहीं है, बकरियां हैं ज़्यादा हैं, तादाद नहीं दिया गया तो हम क्या गोट्स बोलेंगे, एंड शीप। ये बात याद रखें, दिस थिंग शुड बी नोटेड। शीप इज ऑलवेज प्लूरल एंड सिंगुलर। प्लूरल अगर एक है तो अशीप करें, बाकी इसमें ऐसा नहीं कर दो, मतलब इसके बाद शीप्स कर दो, बस ये रॉन्ग हो जाएगा। इफ़ यू राइट दिस शीप्स, इट कैनॉट बी, ये कभी भी नहीं हो सकता कि शीप्स, ये हमेशा शीप हो जाएगा। ही हैज़ शीप, इसके पास भेड़ियाँ हैं, भेड़ियाँ कितने ज़्यादा हैं, लेकिन शीप्स नहीं लिखना है। अगर इस सेम ही सेंटेंस को इंटरव्यू बनाने के लिए आपको क्या करना है, ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर निकाल करने का है, सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में लगाना है, पूरे सेंटेंस को सेम ही छोड़ देना है, उसमें कोई वेरिएशन कोई नहीं करनी है, क्योंकि वहीं छोड़ देना है। पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। हैज़ सनम गोट्स एंड शीप, क्या सनम के पास बकरियां और भेड़ियां हैं। अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो सब्जेक्ट ये क्या, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है। हैज़ सनम नॉट गोट्स एंड शीप, क्या सनम के पास बकरियां और भेड़ नहीं है, अगर नहीं है तो नहीं, ये क्या है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अगर हमारा या दूसरा भी सेंटेंस हमें दिया जाए, हम उसको कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास मेहमान मौजूद हैं, उन्होंने के पास मेहमान मौजूद हैं, जैसे कि असलम के पास मेहमान हैं, चंदर के पास बहुत ज़्यादा मेहमान हैं, चंदर के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है। हम इसको सेंटेंस को हम अंदाज़ा लगाते हैं कि मतलब ये किस टेंस से रिलेटेड करता है, ये जान लेना चाहिए। पॉजिटिव है, जिसमें पास है, साथ है, ये क्या है, पॉजिटिव है। ये उनके साथ मेहमान है, मीन्स उन्हें इंग्लिश में कहते हैं दे। आप पहले जान चुके हैं दे क्या यूज़ करता है, हैव करता है, प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा। आपको पहले सब्जेक्ट पुट करो, उसके बाद क्या पुट करो, ऑक्सिलरी वर्ब जो भी है वो पुट करो। ऑक्सिलरी वर्ब हैव पुट करो, दे हैव गेस्ट्स, कितने मेहमान हैं, ज़्यादा मेहमान हैं, उसके पास मेहमान हैं, ज़्यादा हैं, तो आपको जो नाउन है उसको इस्तेमाल लगा दो, ये क्या पॉजिटिव बन जाएगा। चंद्र के पास पैसे है, पैसा है, चंद्र के पास पैसे हैं, ये हम बात कर रहे हैं जनरली, ये क्या है, पॉजिटिव टेंस है। इसको हम ट्रांसलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट। आप सब्जेक्ट यहाँ से लिख लो, बाकी क्या है सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट देख लो सिंगुलर है तो क्या आपको सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो सिंगुलर प्लूरल लगाना है। चंद्र सिंगुलर है तो हमने क्या लगाया, हैज़ लगाया। चंद्र हैज़ मनी, चंद्र के पास पैसे है। अगर चंद्र के पास पैसे नहीं है तो क्या, यहाँ से सिर्फ आप नॉट करो, चंद्र हैज़ नॉट मनी, चंद्र हैज़ नो मनी, ये भी सही है, चंद्र हैज़ नॉट मनी, चंद्र के पास पैसे नहीं है अभी, चंद्र के अभी जो पॉकेट है उसमें कुछ भी पैसे नहीं है, तो इससे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। क्या चंद्र के पास पैसे हैं, अगर आप किसी भी फ्रेंड से मिलते हो, अपने फ्रेंड से पूछते हो क्या इसके पास पैसे हैं, तो आप इसको कैसे ट्रांसलेट कर सकते हो, हैज़ ही मनी, सिंपल, क्या इसके पास पैसे हैं। अगर लड़की है तो क्या शी लगा दो, हैज़ शी मनी, क्योंकि जो मनी होती है उससे हम आर्टिकल और नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये भी बात याद रख लेना चाहिए। दिस पॉइंट शुड बी नोटेड, we don't use the things, we don't use article which can be mere। ऐसी चीज़ें जो मेयर होती हैं वहाँ से हम आर्टिकल और कभी भी इस्तेमाल नहीं कर लेना चाहिए, ये भी बात आपको याद रख लेना चाहिए, अपने ब्रेन में नोट कर लेना चाहिए। अगर इंटरव्यू बनना चाहते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर निकाल कर सेंटेंस में इंटरव्यू बन जाएगा। बिल्कुल, हैज़ चंद्र मनी, क्या चंद्र के पास पैसे है। आगे बढ़ेंगे, इमरान और शेख रशीद के पास अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। ये तो बिल्कुल हमारी वज़ीर आज़म इमरान खान के बारे में बात की जा रही है। इमरान और शेख रशीद जो है रेलवे मिनिस्टर है, उसके पास क्या है, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं। वो तो
मतलब वज़ीर आज़म है, एक तो रेलवे मिनिस्टर है, उसके बाद बिल्कुल हैं, वो कब अभी हैं, तो हम इसी सेम सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करें? तो इसके लिए मैं सिंपल और इजी तरीके से ये भी मैं बताऊंगा। इसमें सब्जेक्ट कितने हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सब्जेक्ट जान लेना चाहिए। सब्जेक्ट इमरान और शेख रशीद कितने? 2। तो आपको पहले इमरान लगाना है एंड शेख रशीद, 2 सब्जेक्ट है। अगर 2 सब्जेक्ट तो हम क्या ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल करेंगे? 2 सब्जेक्ट तो हम ऑक्सिलरी वर्ब भी प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या यूज़ करेंगे? प्लूरल करेंगे। तो हमें क्या लगाना है? हैव लगाना है। बड़े बड़े, बिगर एंड बिगर, क्या है? बड़े बड़े गाड़ियाँ हैं, बिगर एंड बिगर व्हीकल्स। इमरान खान और शेख रशीद के पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। ये सिंपल, इमरान खान एंड शेख रशीद हैव बिगर एंड बिगर व्हीकल्स। अगर इमरान खान के बारे में सिंपल बात की जाए, इमरान खान के पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। इमरान खान हैज़ बिगर एंड बिगर व्हीकल्स। सिंपल, वेरी इजी। क्योंकि इमरान एक सिंगुलर, तो हम उससे हैज़ लगाएंगे। अगर इमरान के साथ कोई दूसरा बंदा है, सपोज इमरान है, असलम है, या इमरान खान के साथ शेख रशीद है या शामिल कुरैशी है, उसके बारे में बात की जाए, वो सब्जेक्ट कितने हैं? 2 सब्जेक्ट हैं। अगर सब्जेक्ट भी 2 हैं होंगे तो हम क्या पुट करेंगे? ऑक्सिलरी और भी प्लूरल पुट करेंगे। सो ये सेंटेंस आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये मतलब अच्छा सेंटेंस है। क्या इमरान खान, ये इंटरव्यू कैसे बना सकते हैं? इमरान खान और शेख रशीद के पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं हैं। अगर हम जनरल बात करें तो भाई उसके पास तो हैं गाड़ियाँ, क्योंकि वो तो वज़ीर आज़म है मुल्क के, जो इस मुल्क के वज़ीर आज़म है, उसके पास ज़रूर हैं। अगर हम इसको इंटरव्यू कैसे बना सकते हैं, तो इसके लिए भी आप बना सकते हैं। कैसे? आपको क्या, इमरान खान और शेख रशीद जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसके साथ साथ आपको क्या नॉट लगाना है। सॉरी, हैव नॉट, ये हमने गलती कर दिया, यहाँ से नॉट। इमरान एंड शेख रशीद हैव नॉट बिगर एंड बिगर व्हीकल्स। क्योंकि इमरान खान गरीब है, वज़ीर आज़म तो है लेकिन वो क्या है? गरीब है। शेख रशीद भी गरीब है, वो क्या है? वो गरीब है, उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं हैं। इसको इंटरव्यू आप बना सकते हैं। इमरान खान एंड शेख रशीद हैव नॉट बिगर एंड बिगर व्हीकल्स। बड़े बड़े को कहते हैं बिगर एंड बिगर व्हीकल्स, गाड़ी। सिंपल। क्या इमरान खान और शेख रशीद के पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं? अगर आप किसी फ्रेंड से मिलते हो, सपोज़ किसी पार्टी से रिलेशन करता है, वो आपसे पूछता है, आप सपोज़ पूछ सकते हैं इंटरव्यू सेंटेंस, तो इसको भी कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं? तो इसके लिए मैं आपको वे सिंपल इस तरह के ट्रिक बताता हूँ। जो सेमी सेंटेंस, उसका जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको निकाल कर सेंटेंस के स्टार्ट में लगा दो, वो क्या सेंटेंस इंटरव्यू बन जाएगा। जिस कैसे? ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये है, इसको निकाल कर बाहर लगा दो। क्या? सेमी सेंटेंस को दूसरा छोड़ दो बस। हैव इमरान एंड शेख रशीद बिगर एंड बिगर व्हीकल्स। इमरान खान और शेख रशीद के पास बड़ी बड़ी, क्या इमरान और शेख रशीद के पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं? ये क्या टू बी नहीं शो करा, ये क्या पॉजिटिव शो करा, ये ओनरशिप है, ये इस बड़ी बड़ी गाड़ियाँ की मालकान हैं। तो हम क्या इसको क्या कहते हैं? इज प्रेजेंट पॉजिटिव टेंस। इमरान खान और शेख रशीद के पास क्या बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं? ये क्या है? इंटरव्यू, इसको हम सवालिया कहते हैं सेंटेंस। नेगेटिव बनाना वेरी सिंपल है। सब्जेक्ट पास आपको के बाद आपको क्या लगाना है? नॉट लगाना है। हैव इमरान खान एंड शेख रशीद नॉट बिगर एंड बिगर व्हीकल्स। वेरी सिंपल है। हम आगे बढ़ेंगे। अली के पास अच्छा घर और दुकान है। अली एक कोई बंदे का नाम है, उसके पास अच्छा घर भी है, दुकान भी है, लेकिन वो क्या? एक बंदा है। एक बंदा है तो क्या सब्जेक्ट क्या है? पहले सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हम क्या पुट करेंगे? सिंगुलर ऑब्जेक्ट पुट करेंगे। अली को आपने लिख लिया, अली यहाँ से अली के पास है, अली हैज़, अली सिंगुलर, तो हम क्या पुट करेंगे? सिंगुलर पुट करेंगे। अली हैज़ वंडरफुल, अच्छा वंडरफुल, या कोई भी आप लग्जरी लगा सकते हैं, वंडरफुल हाउस एंड शॉप। अली के पास क्या है? एक अच्छा शानदार घर भी है और उसके साथ शॉप भी है। कितने हैं? 2 हैं। वो एक अमीर बंदा है, वो उसी प्रॉपर्टी के मालकान है। क्या है? मालकान है। तो हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट पॉजिटिव टेंस। प्रेजेंट पॉजिटिव टेंस। मजाक करने वालों के साथ सब कुछ हैं। जो मजाक करते हैं उसके पास सब कुछ नॉलेज होती है। ये क्या है? वो उसी नॉलेज के मालकान हैं, वो नॉलेज खुद रखते हैं, उसके पास हैं। जैसे कि मेरे पास इंग्लिश की अच्छी स्किल्स हैं, हम इसको भी कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट? आई हैव गुड स्किल्स इन इंग्लिश, आई हैव गुड स्किल्स ऑफ एनी आर्ट, आई हैव गुड स्किल्स ऑफ बायोलॉजी, आई हैव गुड स्किल्स ऑफ एनी रिसर्च, आर्टिकल एनालिसिस, एनी काइंड ऑफ। मेरे पास कोई भी स्किल्स है, हम क्या है? ये भी हम उस स्किल्स के मालकान हैं, वो स्किल्स मेरे पास हैं। क्या है? मेरे पास है। अगर तुम्हारे पास है, ये बोलूँ कि तुम्हारे पास अच्छी नॉलेज है, यू हैव
वंडरफुल नॉलेज। तुम्हारे पास सब कुछ है, यू हैव ईच एंड एवरीथिंग। तुम्हारे पास क्या है? यू हैव ऑल समथिंग, आपके पास सब कुछ है। तो ये क्या है? पॉजिटिव शो कर रहा है। तो हम इसी सेंटेंस को कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम सपोज बात कर रहे हैं, इसके पास हैं, क्या है? ही हैज़ समथिंग, उसके पास कुछ तो हैं, लेकिन हमें कोई डाउट है किसी फ्रेंड के में, मतलब हम होटल पे गए, वहाँ से फ्रेंड चाय पी ली, मैं ये बोला कि भाई इसके पास तो कुछ हैं, पैसे नहीं निकाल रहा है, क्योंकि वो ऐसा करता है बस जब भी दूसरे फ्रेंड के साथ जाता है बस दूसरे पैसे फ्रेंड दे देते हैं, ये तो आप कंजूस होता है। वो क्या है? हम कहते हैं भाई इसके पास कुछ तो कुछ हैं, ही हैज़ समथिंग एल्स, इसके पास कुछ तो कुछ हैं। क्या? ये ओनरशिप है, ये क्या कर रहा है? मालिकान है। पैसे होंगे या खाली जेब होगा तो मजाक करने वाले के साथ सब कुछ है। मजाक करने वालों को जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ER, दीज आर आल्सो नोन एज नाउन। ये नाउन है, पर क्या? ये काम करने वाला का शो कर रहा है। जैसे कि हम डू ये क्या है? करना। डूअर क्या है? काम करने वाला होता है, हम उसको डूअर कहते हैं। जैसे कि डिक्टेटर, ऐसा बंदा एक ही निज़ाम चलाने वाला होता है। वो क्या है? एक काम करने वाला होता है। वहाँ क्या निज़ाम शो कर रहा है? समथिंग हिज डूअर। जैसे जोकर है, जोक मीन्स मजाक करना, जोकर क्या है? मजाक करने वाले लोग होते हैं, वो क्या है? जोकर होते हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है? जोकर्स, मजाक करने वालों कितने ज़्यादा है? मजाक करने वालों, जोकर्स हैव आर समथिंग उसके पास एल्स लगा, सही है। जोकर्स हैव आर समथिंग एल्स। जो मजाक करने वाले लोग हैं उसके पास सब कुछ मौजूद होता है, क्योंकि वो तो स्किल्स उसके पास अच्छी नॉलेज होती है। वो फनी मजाक उड़ाते रहते हैं। उसका बस ये काम है कि जैसे वो किसी फ्रेंड से मिले, बस उसको मजाक उड़ाते हैं, बस उसके पास अच्छी स्किल्स हैं। हम उसको क्या? प्रेजेंट पॉजिटिव टेंस वो है। गरीब लोगों के साथ और पास, अगर साथ वाला कोई सेंटेंस आ जाए, पास में वाला आ जाए, तो भी कोई फ़र्क नहीं। मेरे पास है, मेरे साथ है, ये भी सिंपल है, पॉजिटिव है, प्रेजेंट पॉजिटिव टेंस। गरीब लोगों के साथ पैसे कम होते हैं। गरीब, ये तो जनरल स्टेटमेंट है। हम बात कर रहे हैं अमीर लोगों के साथ पैसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो उसी की मलकान हैं। गरीब लोग बेचारे होते हैं, वो क्या? मजदूरी काम करते रहते हैं, उसकी दिहाड़ी भी कम बनती है। तो लेकिन ये तो जाहिर सी बात है, उसके पास जो पैसे होते हैं वो बहुत कम होते हैं। वो अपनी लाइफ को एक नॉर्मल सा लाइफ स्पेंड करते हैं। तो अगर इसी सेम सेंटेंस को आप किसी ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो इसके लिए भी आप एक पहला सेंटेंस, गरीब जो लोग होते हैं उसके पास पैसे तो कम होते हैं, ये तो बिल्कुल सही सी बात है। तो इसको पहले ट्रांसलेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरा सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। जो अमीर लोग हैं उसके पास भी पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, इसको भी ट्रांसलेट पहले गरीबों पे इसका। गरीब लोगों के साथ और या पास, साथ लगा दिया, पास लगा दिया, कोई फ़र्क नहीं है, के पास पैसे कम होते हैं, ये जनरल है। गरीब लोगों, इसको आप द पुअर करो। यहाँ से द पुअर क्यों? क्योंकि द पुअर शोज पूरी जो कम्युनिटी है, जो पुअर कम्युनिटी है, जो भी मिडिल क्लास, जो भी लोअर क्लास वाले जो गरीब तबके हैं, जो मजदूरी करने वाले लोग होते हैं, वो पूरे उसी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो हम उससे को पूरी कैटेगरीज के बारे में अगर बात करना चाहते हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे? द पुअर। मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द पुअर हु बिलोंग टू बैकवर्ड एरियाज, हु आर वर्किंग एज लेबर। वो क्या है? ऐसे लेबर के एज ए लेबर काम करें, उसकी एक तनख्वाह भी कम है, तो क्या वो लाइफ भी एक आम सा ज़िंदगी लाइफ स्पेंड करते हैं। तो क्या है? द पुअर लोगों की कम्युनिटी के बारे में बात की जा रही है। कम्युनिटी के बारे में मीन्स कलेक्शन में समथिंग, अ कलेक्शन, अ ग्रुप ऑफ समथिंग, ऐसे चीज़ जो कलेक्शन होती है वो हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? पीरियड इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से हमें क्या पुट करना है? हैव। कोई डाउट होने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें कलेक्शन शो करें, जो चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा हैं, वो क्या है? प्लूरल हैं, तो हम वहाँ से क्या? पीरियड वर्ब ऑक्सिलरी इस्तेमाल करें। द पुअर हैव, पैसे कम है, और लिटिल मनी, उसके पास पैसे कम है। द पुअर हैव लिटिल मनी, इसको इंटरव्यू बनाने के लिए हैव द पुअर अ लिटिल मनी। अ लिटिल मीन्स समथिंग ही हैज़ वेरी लो अमाउंट ऑफ मनी, मतलब उसके पास जो पैसे हैं बहुत कम तादाद में हैं, बहुत कम तादाद में, उसको कहते हैं अ लिटिल मनी। ओके, अगर आप रिच वाले सेंटेंस को भी कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो उस वहाँ से सिर्फ ये पुअर है, इसको हटाकर यहाँ से
पुअर है, यहाँ से रिच करो। द रिच हैव, यहाँ से लिटिल को चेंज कर दो, हैव अ लॉट ऑफ मनी। क्या उसके पास बहुत ज़्यादा है। द रिच हैव अ लॉट ऑफ मनी। अ लॉट ऑफ मनी मीन्स उसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, उसके पास क्या है, बहुत ज़्यादा बेंगलोज है। अमीरों के साथ के पास क्या है, बहुत ज़्यादा बेंगलोज हैं, जबकि गरीबों के साथ बहुत ज़्यादा बेंगलोज नहीं है। तो ये क्या है, मालकान है। ये क्या है, वो उसी प्रॉपर्टी के मालकान है। तो ये क्या पॉजिटिव सेंटेंस। इसको नेगेटिव बनाने के लिए तो आपको ऑब्जेक्ट वर्ब उसके के एंड में आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है, वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। सो टुडे दिस वाज लेक्चर अबाउट प्रेजेंट टेंस। I hope this lecture will be more helpful for you, and please put into your comment sections, and did you understand very well. I hope this is my little effort which helps you to correct your English level, to help you to clear the English, and you will become able to speak as like common people, as like usually like UK and USA. Other people, they speak like you can speak. So this is very simple in which I have delivered lecture. So please say into comment sections how was this lecture, how many you were impressed from this lecture. So did you feel enjoy, did you feel very well while attending the lecture? How did you observe, did you get it very well? If you watching this lecture, if you attending the lecture, despite being this attending lecture, if you have any problems regarding to any this point of views, you can ask, you may ask, you put a comment in the comment section. I will try to explain it, I will try to upload a video on that topic. So this is my little first. So again, if you have not subscribed my YouTube channel, so please do subscribe, like, comment, share. I will try to upload such kinds of videos which will be more helpful for you to clear your English language. You can crack the English very soon, and you will be able to appear in any competitive examinations. So we will see you in next time. So thank you so much. Bye bye and take care.